Hello everyone, this is PRS. In the regular class में हमने solution topic start किए थे. In that first part we have discussed solution topic about different types of solutions, concentration units. थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और एक बार देखो. Types of solution, concentration units. उसके बाद में solubility, vapor pressure, ideal and non-ideal solution, azeotropic mixture. Simple part में first part 1 we have completed. Now let's go to the second part. Second part में हमको colligative properties study करना है. So in this colligative properties is nothing but what? Colligative properties क्या होते हैं और what are the different types of colligative properties? First one देखो यहाँ पर colligative properties is nothing but properties of the solution. Colligative properties is nothing but it is the properties of the solution whose values depends upon number of solute particles, but not on its nature. ये colligative properties होते हैं आपका. क्या है? Properties of the solution whose values depends only on the number of solute particles irrespective of its nature. ये nature of solute के ऊपर dependent नहीं है, but it depends only on number of solute particles are called as colligative properties. Simple definition है यहाँ पर. Colligative properties is nothing but properties of the solution whose values depends only on the number of particles but not on the nature. Irrespective of its nature. इसको हम colligative properties बोलते हैं. In this colligative properties, 4 properties we are going to study in the present topic. वो कौन सा properties है? Already आपके objective points में है. First one is relative lowering in vapor pressure. Second one, elevation in boiling point. Third one, depression in freezing point. Fourth one, osmotic pressure. तो ये 4 colligative properties में let's begin with first colligative properties, relative lowering in vapor pressure. ये first colligative properties study करें. Relative lowering in vapor pressure. Look at that. Vapor pressure means what? इसका definition क्या है? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एंड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आप कंपेयर कर सकते हैं. किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसका कम है, वो क्यों कम है आपको पता है. तो वंस अगेन जस्ट वन एग्जांपल. यहाँ पर हम प्योर सॉल्वेंट लिए. सॉल्वेंट ओनली यहाँ पर फर्स्ट बीकर में सॉल्वेंट है. दिस इज सॉल्वेंट. ये सेकेंड बीकर में सोल्यूशन लिए हम. दिस इज प्योरली ये सॉल्वेंट है एंड दिस वन इज सोल्यूशन. In both case, दोनों केस में क्या है? The pressure exerted by the vapors of pure solvent is P0. ये P0 बोल के कंसिडर किया. Whereas the vapor pressure exerted on the solution, this is considered as P. P0 is nothing but vapor pressure in its pure form. ये solvent है, pure form में है और ये solution का P है. Now बताइए यहाँ पर इन दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा हो सकता है? Which one having higher values, P or P0? Yes, of course P0 का ज्यादा रहता है because ये सॉल्वेंट को some non volatile solute ऐड किया तो solution से and this solution का vapor pressure क्या है? कम. The vapor pressure of solution is less than vapor pressure of solvent. इन दोनों का डिफरेंस जो है that means यहाँ पर फर्स्ट ज्यादा था वेपर प्रेशर. सल्यूट ऐड करने के बाद में वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है. इट इज वेपर प्रेशर इज लोवर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर. कब डिक्रीज हो रहा है? व्हेन सल्यूट इज एडेड. तो विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट कितना डिक्रीज हो रहा है उसको हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं. लेट अस कंसीडर द सेम कांसेप्ट. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज P0 एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज P. तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कांसेप्ट जो है यहाँ पर राउल्स लॉ के कांसेप्ट में हमने स्टडी किया है. राउल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, टू टाइप्स में स्टडी किए वहां पर। तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में अकॉर्डिंग टू द राउल्स, FM राउल्स, फ्रैंकोइस मार्टे राउल्स, व्हाट वाज एस्टैब्लिश्ड द रिलेशंस। राउल्स ला क्या है स्टेटमेंट उसका, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट PI is directly proportional to mole fraction, its mole fraction of solvent ये XA, solvent के ऊपर डिपेंडेंट है, solution के केस में solvent के ऊपर डिपेंड है, if the solute is non volatile, or else PI is equals to P naught I into XA, P naught I into XA। तो ये आपको फार्मूला है राउल्स लॉ के, राउल्स लॉ। ना यहाँ पर लेट अस कंसीडर, यहाँ पर ये हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या स्टडी करना है, कैलकुलेट द मोलर मास बोल के क्वेश्चन आता है आपको, मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए। तो हमको मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास से डिटरमाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस राउल्स लॉ। लेट अस कंसीडर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक सॉल्वेंट को सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज है, कितना डिक्रीज होगा, तो वो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे। लेट अस कंसीडर लेट डेल्टा P चेंज इन वेपर प्रेशर। कैसे लिख सकते हैं आप, यहाँ पर ज्यादा किसका है, P नॉट, P नॉट ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, माइनस P PI एनी कंपोनेंट यू कैन कंसीडर इन दिस केस, P नॉट माइनस P, यस सोल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये P नॉट ऐसा ही है, P के जगह क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, in place of P we can write again P naught into XA, P naught into XA लिख सकते हैं, according to P is equals to P naught into X मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर P naught कॉमन है, you can take it common, P naught is common, 1 minus X, ये 1 minus X है। तो यह इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, that is equals to P naught into XB। ये XB क्या होता है, mole fraction of solute, mole fraction of solute। So therefore delta P is equals to P naught into XB। तो ये delta P क्या है, lowering in vapor pressure, not relative, just lowering in vapor pressure is delta P। अगर इसको relative में consider किया तो delta P divided by P naught with respect to solvent, this is called relative lowering in vapor pressure। This is equals to XB। This is, it is not proportional to XB, it is equals to XB। क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या इसके ऊपर क्वेश्चन दिया है, relative lowering in vapor pressure is equals to mole fraction of solute, not directly proportional, it is equals to mole fraction of solute के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये आपका फार्मूला relative lowering in vapor pressure का फार्मूला ये है। देखिए यहाँ पर since this relative lowering in vapor pressure depends only on mole fraction of solute, solute के ऊपर डिपेंडेंट है, number of solute particles के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको हम colligative properties बोल सकते हैं। Whereas this one lowering in vapor pressure is not a colligative property। Remember, note this point, lowering in vapor pressure is not a colligative property, note that। Whereas रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो रिलेटिव लोअरिंग है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज द योर फार्मूला। लेकिन हमको ये अलोंग विद दिस वी नीड टू डिराइव द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डेरिवेशन तो नहीं पूछते आपको, बट हमको क्या चाहिए, सो इन दिस केस डेरिवेशंस वी आर नॉट गोइंग टू आस्क इन द रेगुलर एग्जाम्स, बट पर्टिकुलर उसका फार्मूला हमको चाहिए। तो वो फार्मूला कैसा डिराइव किया थोड़ा देखेंगे यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट में। हम यहाँ पर फर्स्ट वन इज, यहाँ पर XB के जगह हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय XB, इट इज अ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, सो दिस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 इट कंटिन्यूस। यहाँ पर इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे, डेल्टा P divided by P naught, this is equals to mole fraction of solute। तो उसका फार्मूला XB के जगह mole fraction of solute है, that is number of moles of solute divided by total number of
total number of moles of solute and solvent, that is Na plus Nb. Number of moles of solute, number of moles of solvent plus number of moles of solute. Now for a dilute solution बोले तो dilute solution meaning क्या होता है, solute का concentration कम रहता है compared to solvent. Solvent number of moles of solvent, number of moles of solute. जब इसका concentration बहुत कम रहा तो dilute बोलते हैं. जब in that case Na and Nb में Nb का वैल्यूज बहुत छोटा है, कम है, तो we can neglect this one. तो ये टर्म्स हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर if the solution is dilute. डाइल्यूट रहा तो ये टर्म नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आया, Nb डिवाइडेड बाय Na. और एक स्टेप में देखो Nb नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कैसा फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास. गिवन मास दैट इज W डिवाइडेड बाय मोलर मास. गिवन मास बाय मोलर मास. तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे. Nb के जगह क्या लिख सकते हैं हम, गिवन मास दैट इज Wb डिवाइडेड बाय Mb होल डिवाइडेड बाय WA बाय Mb. रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा, Ma डिवाइडेड बाय WA. तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का और एक फार्मूला. ये फार्मूला हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर. कैलकुलेट Mb where Mb is nothing but M क्या है, मोलर मास, B is nothing but सबस्क्रिप्ट B represent सल्यूट का. ये दोनों ये है Ma and Wa. It is Wb. Wb by Mb, Ma by Wa. This is delta P by delta P क्या है यहाँ पर, lowering in vapor pressure. Delta P is nothing but lowering in vapor pressure. ये delta P क्या है यहाँ पर, lowering in vapor pressure. Lowering in vapor pressure है. Whereas ये जो concept है complete part है, ये क्या है, relative lowering in vapor pressure. ये complete relative. ये colligative property है. This is not a colligative property. This one is a colligative property. तो यहाँ तक आपको ये फर्स्ट पॉइंट नोट करो, एक concept. So colligative properties is nothing but the properties whose values depends only on the number of particles, not on its nature. Irrespective of its nature are called as colligative property. उसपे 4 colligative properties हम स्टडी कर रहे हैं. The first one is relative lowering in vapor pressure. ये relative lowering in vapor pressure में ये फार्मूला डिराइव करो बोल के आपको नहीं पूछते, बट ये फार्मूला के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना पड़ेगा. जस्ट वी विल डिस्कस 1 or 2 प्रॉब्लम्स लेटर. ज्यादा प्रॉब्लम्स आप खुद प्रैक्टिस करो, और नहीं तो खुद थोड़ा चेक करेंगे, वो असाइनमेंट में आपको प्रोवाइड करते हैं, चेक करो, थोड़ा सॉल्व करो ज्यादा. नाउ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमने फर्स्ट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ upon the addition of a solute. First we have considered this one, delta P is nothing but P0 minus P. But according to the Raoult's law definition, Raoult's law statement, we have just substituted its values. P is nothing but P0 into XA. Now take common, P0 is common, we have taken common 1 minus XA. This 1 minus XA is nothing but XB, that is mole fraction of solute. So delta P is equals to P0 into XB, P0 into XB. तो ये P0 इधर लिया, just again rearrange the equations. Delta P upon P0 is equals to XB. This is the equation. So this one is P is vapor pressure, P0 is vapor pressure of solvent, delta P is lowering in vapor pressure. A complete concept, if you are considering a complete term, is known as relative lowering vapor pressure, and this is a colligative property. Please remember, ये delta P is not a colligative property, but complete relative lowering in vapor pressure is a colligative property. तो ये colligative properties में आपको molar mass find out करने के लिए ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, because they are going to ask calculate the molar mass of solute in the problems. So this is about first property, relative lowering in vapor pressure. Colligative properties चारों का चारों उसका एक्सप्लेनेशन, उसका कांसेप्ट बहुत इजी है आपको, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा. ऑन ईच colligative properties 30 क्वेश्चंस, 130 क्वेश्चंस का एक पेपर आप खुद प्रिपेयर करो,
वो 30 क्वेश्चन, मिनिमम 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, मिनिमम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा ऑन ईच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के एक प्रॉब्लम से आपको सॉल्व प्रॉब्लम्स होगा, एक बार वो एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करो। कौन सा प्रॉब्लम से? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वन एग्जांपल इन दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। In the next class we will solve the problems. I will second one more problems, one second colligative properties or with few problems solve करेंगे। one example solve करते आज, next कल की क्लास में फिर क्यों करेंगे। तो क्या है एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है, देखो एक बार। फर्स्ट एक सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। In problem what they have given, or else you just look at the problems, NCERT problems, what they have given, or you can note the problems. Vapor pressure of pure benzene is given. That is vapor pressure of pure benzene is, I have vapor pressure of pure benzene, that is P0 of C6H6 benzene. You can note the problem. Vapor pressure of pure benzene is given, that is 0.850 bar. Vapor pressure of pure benzene is 0.850 bar. Full stop and consider the problem. If when 0.5 gram of non-volatile, non-electrolyte, that means a solute is added. 0.5 gram of non-volatile, non-electrolyte solute, 0.5 gram of solute is added to 39 gram of benzene, 39 gram of benzene। ये 39 ग्राम ऑफ बेंजीन को 0.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट हमने ऐड किया है यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, दिस इज गिवन मास ऑफ WB है, ये क्या है, एडेड टू, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो जब ये बेंजीन है तो इसका फार्मूला हमको पता है, इसका मोलर मास भी हमको पता है। तो ये बेंजीन का मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट Ma इज इक्वल्स टू, इट इज 78 है इसका। तो इसका Mb इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, Mb इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और एक पॉइंट दिया है, when 0.5 gram of solute is added to 39 gram of benzene, the vapor pressure becomes, means vapor pressure of solution is given, P is equals to 0.845 bar। देखिए हमको MB चाहिए, MB के लिए इतना डाटा दिया है in that problems। और you can note the problem, the vapor pressure of pure benzene is 0.850 bar when, full stop and continue, when 0.5 gram of a non-electrolyte, non-volatile solute is added to 39 gram of benzene, the vapor pressure of solution is found to be 0.845 at certain temperature. Calculate the molar mass of solute। ये आपका प्रॉब्लम है और वो गिवन डाटा मैंने नोट किया, जस्ट गिवन डाटा नोट किया यहाँ पर, जस्ट ए सैंपल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमको मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करते हैं आप, डेल्टा पी। डेल्टा पी इज नथिंग बट क्या है फार्मूला, वो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल्स टू N2 upon N1, that is WB divided by MB into MA डिवाइडेड बाय W। ये फार्मूला है आपको। डेल्टा पी में क्या है, ये डेल्टा पी इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर डेल्टा पी ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन, तो इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा पी इज नथिंग बट क्या है यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर P0 माइनस P, यू कैन टेक P0 माइनस P, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। P0 वैल्यूज क्या है, 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाय 0.850, दैट इज इक्वल्स टू WB कितना दिया है, 0.5, WB इज 0.5 इंटू MA का वैल्यूज कितना है, 78, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 into 78 divided by MB
हमको फाइंड आउट करना है एज इट इज एम बी इंटू डब्ल्यू ए कितना दिया 39 सिंप्लीफाई करो एम बी का वैल्यू सॉल्व करो सिंप्लीफिकेशन दैट इज इक्वल्स 39 1s 39 2s 70 2 into 0.5 that is 1 by mb is equals to this 1 by mb ये यहाँ पर इतना है ये डिफरेंस कितना होता है यहाँ पर 0.123 डिजिट है 005 राइट 0.005 डिवाइडेड बाय 0.850 सिंप्लीफिकेशन 2 into 0.5 ये 1 हुआ 1 by mb यहाँ पर है that is 1 by mb है यहाँ पर तो ये क्या होता है देखो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट शिफ्ट करूं मैं यहाँ पर दैट इज गिव्स टू ये 5 हुआ 1 2 3 1 2 3 5 अपॉन 850 सिंप्लीफिकेशन करो आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है कैलकुलेशन करो mb इज इक्वल टू 5 1s 1 5 1s 5 रिमेनिंग 3 नेक्स्ट 5 7s रिमेनिंग 1 by 170 1 by mb therefore mb is equals to 170 ग्राम mb is equals to 170 ग्राम एक सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व किया मैंने आप एक मिनिमम एक 20 क्वेश्चन सॉल्व करो सॉल्व करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स कुछ डाउट्स हुआ तो जस्ट यू कैन आस्क द डाउट्स वी विल डिस्कस अबाउट द डाउट्स एंड विल कंटिन्यू द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कल के क्लास में नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी विल एक्सप्लेन that is second one is elevation in boiling point स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे 20 प्रॉब्लम्स 20 to 25 प्रॉब्लम्स तो मिनिमम सॉल्व करने के बाद में कुछ डाउट है तो वो डाउट्स सेंड कीजिए वी विल डिस्कस अबाउट द डाउट्स एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थैंक यू नोट करो